कॉन्ट को थोड़ा सा ब्लैक बॉक्स भी लोग कहते हैं. पीपल अंडरस्टूड कि व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड जस्ट बाय द मार्केट, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लुक एट द एंटायर पॉपुलेशन, वी आर नॉट इवन 4%. पान वाला और चाय वाला जब तक SIP नहीं कर रहा है, रीच नहीं पहुंचा है. एडवाइजर जरूरी है. एडवाइजर आपके वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है. वो इसलिए फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं, उनको कमीशन बनाना है, बट दे एक्चुअली रियली प्ले अ बिग रोल इन योर लाइफ. Episode of House of Equentis podcast. Today we have with us Mr. Vikash Wadekar, who is the head of business in passive funds and quants at Axis Asset Management. So welcome Mr. Vikas. So I would like to start with the first question that tell us about your journey from University of Mumbai to where you are right now in the industry. Yeah, first of all, thank you Mosmi and Equentis for this opportunity. Yes, so like any other graduate, once you pass graduation, you look for what to do next. Okay, and in fact, this was like a compulsory job. I couldn't do my masters immediately. I had to take up a job, and landed up in financial market. Yeah. Okay, and somehow it happened. This was 2001. Markets were not that great. Because of the IT crisis which recently happened those years, and then 2003 onwards market suddenly picked up. Right. Okay, and that's where you see, oh, now there are a lot of opportunity, and then there was no looking back for market and not looking back for me. So mutual fund just bought me over, and I'm here for last 23 and a half years. Wow. Yes, yeah. So 2 decades of experience, that's very rich experience. So tell us something about कॉन फाइनेंस, बिकॉज हमारे ऑडियंस को बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कॉन फाइनेंस होता क्या है. सो वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू फ्रॉम रिच एक्सपीरियंस गाय. सो टेल अस अबाउट दैट. Yeah, so basically when you look at any movie, okay, how do you say that it's a movie is a blockbuster? Because of its songs, okay, probably storyline, star cast, okay, or for that matter, what the social messages gives, right? So what factors get into a particular movie that makes a particular movie a popular movie? Okay, now same you apply for your portfolio. How to make a great portfolio? Right, what all factors can get into it? Okay, how which are the models? Are you looking at quality? Are you looking at growth? What Momentum. Is that you're looking at? Yeah, exactly. That's how a portfolio is built. Okay, so quant can be made very very simple. It's like a mathematical model. आपने एक मैथ्स का एक मॉडल बनाया है. ओके, यू हैव अ यूनिवर्स. आपने 200 स्टॉक का यूनिवर्स लिया या 500 स्टॉक का यूनिवर्स लिया है, एंड आपने कुछ यू पुट सम मैथमेटिकल formulas just to get a result. Okay, I'll tell you an example. I can make it simple. If you are looking at a low risk, okay, consistent stock, how do you look at it? Okay, आप कैसे देखोगे? तो आपको देखना चाहिए in quant terms what is volatility or standard deviation of those particular stock. Okay, so you have a universe of 200. आप देखिए low vol stock कौन से हैं? That's how you get consistent or defensive stock, right? If you are looking at high growth stock, if you are looking at a momentum kind of a stock, how do you look at it? You look at the high risk adjusted return. So you make models in quant finance? Yeah, so quants are basically models. That's one I talked about, low risk portfolio. Right. Okay, now I'm talking about the high risk portfolio. अगर आपको portfolio risk बढ़ाना है तो कैसे देखोगे आप? You look at all those stocks जो बढ़ रहे हैं. Okay, तो how do you quantify that? You look at a risk adjusted return कि उन्होंने कितना रिस्क लिया और रिटर्न कितना लिया. Right. So that's the mathematical model. If you want to build a quality portfolio, okay, how do you look at? तो आपको देखना होगा leverage ratio क्या है, debt equity ratio क्या लेनी है कंपनी में, net worth कितना बढ़ रहा है, right? And you also look at cash flow. Cash flows, yeah. Okay, so that becomes a quality portfolio. Now you have to look at a value portfolio. So you look at price to equity ratio, price to book ratio, and price to sales ratio, right? So these are few. I just picked up very few to talk about low volatility, momentum, value, and quality, right? And for each there is some mathematical formula, right, to arrive at a portfolio. Okay, so that is exactly what quant is. Quant क्या करता है? आप एक मैथमेटिकल मॉडल बनाओगे, आप वहाँ से 200 स्टॉक ऊपर से डालोगे और फिल्टर करके आपका पोर्टफोलियो आएगा, राइट? सो quant makes your whatever you want masala in your portfolio, that exactly it gives you. Okay,
द बेस्ट पार्ट अबाउट क्वांट इज देयर इज नो ह्यूमन बायस देयर, क्योंकि उसमें क्या है कि इट्स अ मैथमेटिकल मॉडल, राइट? तो आप उसको कुछ चेंज नहीं कर सकते. इधर यू चेंज अ मॉडल, ओके, और यू हैव 3-4 फैक्टर, 2-3 चीज आप ले रहे हो, वो आपको रिजल्ट आएगा. और यू कैन एडजस्ट द फॉर्मूलाज. यू कैन एडजस्ट द फॉर्मूला, यस. बट क्वांट के लिए जितना आप ज्यादा एडजस्ट करोगे वो थोड़ा ब्लैक बॉक्स होते जाता है. Okay, so there is something that you can keep it simple also. You can make a complex model also. There are different models available. I also want to ask you, since you come also from the sales background, so how did you get into like quant finance? How did you build that knack? वो जो होता है ना कि ये मुझे सीखना है, I want to do this now in the research. So how did you get into that? वो कैसे डेवलप हुआ? Right. So when I got into mutual fund industry, देखा कि the special guys if you see in mutual fund industry are the fund managers. Okay, because they do a lot of research, they have a lot of access to data. Okay, and I used to always wonder, how do these guys think? Okay, ये stock कैसे आते हैं? You can imagine just a fresher coming out of college and trying to identify. So those used to feel like stars. Okay, fund managers. And अगर आप देखोगे कि क्या क्या करते हैं वो, so they like particular stock, they have some theme in their mind. Okay, उनको चाहिए होता है कि मेरे पोर्टफोलियो में ग्रोथ स्टॉक चाहिए, तो हाउ डू आई लुक एट अ ग्रोथ स्टॉक? ओके, सो दे लुक एट से टॉप टू बॉटम, दे लुक एट अ सेक्टर, फिर एक कंपनी में जाते हैं, दैट्स हाउ दे फिल्टर. या फिर बॉटम अप होता है कि दे लुक एट अ पर्टिकुलर स्टॉक, या फिर कुछ रिटर्न्स देखना है, या पर्टिकुलर कंपनीज देखना है. सो दैट्स हाउ दे बिल्ड पोर्टफोलियो. ओके, सो एंड देन व्हेन यू मीट डिफरेंट फंड मैनेजर, हर किसी का स्टाइल अलग अलग है, राइट? जैसे इन फिल्म इंडस्ट्री यू हैव डिफरेंट एक्टर्स, एवरीबडी हैज डिफरेंट फ्लेवर्स, राइट? तो हर कोई अलग अलग सोच रहा है. ओके, एंड दैट्स वेयर आई वाज थिंकिंग कि ये कुछ स्टैंडर्डाइज हो सकता है क्या? ओके, कि हर कोई अलग सोच रहा है ना, अलग सोचने का रिजल्ट भी अलग अलग आ रहा है. ट्रू. यू सी देयर इज नो कंसिस्टेंसी. ओके, एवरीबडी इज ट्राइंग टू डू द सेम थिंग इन द सेम यूनिवर्स. स्टॉक तो हमारे पास उतना ही है, ऐसा नहीं कि हर किसी के पास अलग अलग स्टॉक्स हैं. अगर हम टॉप 500-700 स्टॉक्स देख रहे हैं तो उसी में ही सब कुछ चल रहा है. सो दैट्स वेयर आई केम अक्रॉस लर्निंग कि क्वांट फाइनेंस के बारे में, क्योंकि ग्लोबल फैक्टर्स के बारे में मैंने सुना. जैसे मैंने कहा कि क्वांट को थोड़ा सा ब्लैक बॉक्स भी लोग कहते हैं. ओके, क्योंकि आप जैसे कहा ना आपने कि मूवी में 4-5 फैक्टर होनी चाहिए, ओके, टू मेक दैट ब्लॉकबस्टर मूवी. आपके पोर्टफोलियो में 4-5 फैक्टर भी हो सकते हैं. कई पोर्टफोलियो हमने देखे 40-50 फैक्टर्स भी होते हैं. आई हैव सीन 200 फैक्टर्स. मतलब आप 200 पॉइंट्स देख रहे हो, ओके, ऑन द यूनिवर्स टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो. सो इट कैन गो एज कॉम्प्लिकेटेड एज इट पॉसिबल, राइट? बट अभी इतना मैथमेटिकल मॉडल अगर आप बात करोगे कि मैं 200 फैक्टर्स क्या कर रहा हूँ, कैसे ऐड कर रहा हूँ पोर्टफोलियो में, दैट विल डेफिनेटली क्रिएट कंफ्यूजन फॉर इन्वेस्टर्स, ओके, फॉर द एडवाइजर्स ऑल्सो. हाउ डू यू सिंप्लीफाई दिस? एंड तब फैक्टर इन्वेस्टिंग, विच इज अ पैसिव प्लस और स्मार्ट बीटा काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो केम अप. ओके, इसमें डेरिवेटिव्स भी होते हैं. आप डेरिवेटिव्स को यूज करके पोर्टफोलियो कैसे हेज कर सकते हो, ओके, सो दैट यू कैन कीप अ मार्केट न्यूट्रल पोर्टफोलियो, ये भी कर सकते हो. सो दैट्स हाउ आई वेंट ऑन लर्निंग एंड गॉट डीपर इनटू इट. सो क्रक्स ये है कि इट कैन बी सिंपल ऑल्सो, it can be transparent also, it can be complicated also, right? So nothing right and wrong, it's just how a fund manager thinks. And if you feel कि हाँ ये इन्होंने जो मॉडल बनाया है ये खिचड़ी मुझे जम रही है, you will do it. If you think ये नहीं जम रही है तो there are other options also available. So you just spoke about factor investing. So I think a lot of our viewers don't know about factor investing when it comes to using quant finance and your human as in research that we do. Right. So can you explain a little about that, like in few lines? Can you explain that to our viewers? Okay. So I'll take you back to 1960s. 1960s के दशक में अगर आप देखोगे कि जो पोर्टफोलियो रिटर्न होता था, ओके, देयर वाज नथिंग कॉल्ड अल्फा. अच्छा. ओके, सपोज देयर आर 100 इन्वेस्टर्स, ओके, और जो रिटर्न आपको मिला है वो मार्केट का रिटर्न. ओके, दैट्स हाउ पीपल यूज्ड टू थिंक. 60s कंपनीज लेस थी, कंपनीज नहीं थी तब. कंपनीज तो थी बट क्या है, इंटेलेक्चुअल लोग थोड़े कम थे. देन फ्यू इंटेलेक्चुअल नोबल लॉरेट्स केम इन एंड दे आइडेंटिफाइड कि देखो ये जो मार्केट में 100 लोग हैं ना, तो उनका मिला के रिटर्न से x है, 10% है, और मेरे पोर्टफोलियो में 12% रिटर्न मैंने जनरेट किए. तो वो जो अल्फा गॉट डेफिनेशन केम इन 1960s to 90.
ये 30 साल में फिर अल्फा क्या होता है ये थोड़ा सा जनरेट हो, लोगों को पता चला कि हाँ अल्फा भी होता है, कि एक एवरेज रिटर्न होता है सबका, और फिर मैंने कुछ बेटर किया परफॉर्मेंस एंड पीपल स्टार्टेड ट्रैकिंग ओके कि मार्केट से बेटर क्या होता है। 90s के बाद अगर आप वो अल्फा को थोड़ा सा और डीपली देखोगे और स्टडी करोगे, उसकी पोस्टमार्टम करोगे, तो यू विल रियलाइज कि अल्फा एक्चुअली कमिंग आउट ऑफ 80% आउट ऑफ फैक्टर्स। ओके, इफ आई मेक इट सिंपल, फैक्टर्स मीन्स अल्फा। ओके, आप जो वो एडिशनल रिटर्न आप पोर्टफोलियो में देखना चाहते हो आपके पोर्टफोलियो में, विच एक्चुअली कम्स आउट ऑफ फैक्टर्स, एंड दैट्स हाउ फैक्टर्स आर पावरफुल। ओके, तो फैक्टर्स आपको क्या बताते हैं कि ये जो फंड मैनेजर्स मार्केट में है वो अपना अपना जो पोर्टफोलियो बनाते हैं, अपनी अपनी खिचड़ी जो बनाते हैं, सो दे हैव देयर डिफरेंट फ्लेवर्स विच दे ऐड, राइट। तो पता नहीं था कि ये फंड मैनेजर कैसे सोचते हैं। अभी फैक्टर्स आपको वो सिंप्लीफाई करता है कि ये 4-5 चीजें हैं, ये पोर्टफोलियो में डालने से रिटर्न आता है। like factors as in your revenue, PAT, like that. हाँ, factors? so factors को globally ये 4 जो which I said, momentum is called factor. Okay. Okay, low volatility is a factor. Okay. Quality is a factor. Value is a factor. Size is a factor. Size and you know if you're large cap, you're a mid cap and small cap. Okay, so if you build a portfolio, तो आप एक quality portfolio बना सकते हो mid cap या small cap से भी. That becomes a factor. तो आप mid cap में जा रहे हो और उसमें से quality companies उठा रहे हो. Okay. Right, and you use some mathematical models. Right, तो factors are very transparent. आपको exactly पता है कि मैं जब low volatility कहता हूँ या quality में ये 3 ही factor चीज़ें use करता हूँ to get a quality. तो transparency की वजह से factors are very popular and they have delivered consistent return. In fact, factors are also used for tactical approach. राइट, कि जब इकोनॉमिकल कुछ इंडिकेटर्स चेंज होते हैं तब मैं मुझे क्वालिटी में जाना है, ग्रोथ में जाना है, वैल्यू में जाना है. सो विकास, बिफोर वी डीप डाइव इनटू दिस इन्वेस्टिंग एंड क्वांट world, I want to understand, especially for the viewers, please tell us the difference between passive and active funds, because काफ़ी viewers को उसमें दिक्कत होती है समझने में. So we want basic difference, simplify it and let us know. Right. थोड़ा सा मैंने टच अपॉन किया था कि there are different fund managers. Okay. What is an active style? Active style में आप एक यूनिवर्स डिसाइड करते हो. Okay. जैसे you can say top 500 stocks. Okay. और मुझे पोर्टफोलियो बनाना है. राइट, सो मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने कहा मुझे खिचड़ी बनानी है. ओके, तो उसमें मुझे आई वांट वैल्यू एंड से ग्रोथ, दोनों ऑप्शन मुझे चाहिए. तो आई लुक एट ऑल दोज कंपनीज विच आर वैल्यू कंपनीज, गुड वैल्यूड कंपनीज. आई लुक एट दोज हु आर क्वालिटी कंपनीज और मैं पोर्टफोलियो बनाऊंगा. राइट, दिस ये मेरा स्टाइल हो गया. आपका स्टाइल अलग हो सकता है. ओके, यू वांट टू लुक एट ओनली ग्रोथ स्टॉक और क्वालिटी आपको लेना है. राइट, सो दैट्स कॉल्ड एक्टिव इन्वेस्टमेंट. तो आप क्या करते हो, उस यूनिवर्स में जाके रिसर्च करते हो. ओके, कि आउट ऑफ से 500 स्टॉक ये मुझे लग रहे हैं कि ये 100 स्टॉक है, ये क्वालिटी स्टॉक्स है. ओके, एज पर आपके फिल्टर से. उसमें देन यू गो सेक्टर वाइज. आपको लग रहा है कि ये सेक्टर में मुझे ये अच्छे लग रहे हैं, वो सेक्टर में अच्छे लग रहे हैं, थर्ड सेक्टर में अच्छे लग रहे हैं. देन दैट्स हाउ यू बिल्ड अ पोर्टफोलियो. तो आपने क्या किया, आपने रिसर्च की, आपने एक्चुअली वेंट डाउन टू ऑल कंपनीज बैलेंस शीट, यू टॉक टू मैनेजमेंट, अटेंड देयर AGMs एंड ऑल. राइट, और फिर आपने पोर्टफोलियो बनाया. राइट, तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा रिसर्च जाता है. यू नीड अ सेक्टर एनालिस्ट. ओके, यू नीड अ फंड मैनेजर. राइट, ओके, एंड यू नीड अ स्टाइल ऑल्सो. आपका एक फंड का स्टाइल होता है, जैसे ग्रोथ वैल्यू कहाँ मैंने. So by style you mean is it like conservative approach, aggressive approach, like that? नहीं, ये जो मैंने कहा ना, ग्रोथ एंड वैल्यू हो गया, ये कंबाइन कर रहे हो आप. आप क्वालिटी को ग्रोथ कर सकते हो, आप सिर्फ ग्रोथ कर सकते हो. Okay. ओके, आप देख रहे हो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न में कैसे ज्यादा. दीज आर ऑल स्टाइल्स दैट यू लुक एट एंड देन यू सिलेक्ट कि आप कहाँ जा रहे हो. तो दैट्स कॉल्ड एक्टिव रिसर्च. Right. ओके, सो देयर इज अ रिसर्च टीम, एनालिस्ट एंड देयर इज अ फंड मैनेजर. Deep dive, in depth. Deep dive into, you exactly know what this company is doing. That is what is expected from you. क्योंकि इन्वेस्टर को पता नहीं होता कि क्या चूज करना है. तो यू आर अ डेडिकेटेड फंड मैनेजर, यू हैव अ टीम, सो यू डू इट एंड यू बिल्ड अ पोर्टफोलियो. दैट्स कॉल्ड एक्टिव इन्वेस्टमेंट. व्हाट इज पैसिव इन्वेस्टमेंट? पैसिव इन्वेस्टमेंट में आप एक मार्केट इंडेक्स के साथ जाते हो. ओके, ओके, जैसे निफ्टी 50 हो गया, नेक्स्ट 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, निफ्टी 500 हो गया. राइट, ये इंडेक्स के साथ जाते हो. नाउ यहाँ पे कौन फंड मैनेजर होता है? अच्छा, ओके. तो यहाँ पे मार्केट के जितने भी फंड मैनेजर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड में तकरीबन 500 फंड मैनेजर्स. ओके, PMS और AIF पकड़ के 1000 फंड मैनेजर्स हैं. तो 1500 फंड मैनेजर्स ये जो मार्केट में करते हैं उसका जो रिजल्ट आता है दैट इज एन इंडेक्स. राइट, करेक्ट. राइट.
फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्टॉक आप ले लीजिए, रिलायंस लीजिए, TCS ले लीजिए, उसका जो प्राइस चल रहा है अभी मार्केट में, who has influenced that price? Us. Everyone in the market, correct? Now you can't say that, no, I am not comfortable, I want to buy it at low. Will you get it? No, because market wants it at a particular price. That's called market wisdom. So for passive style, there is no one fund manager, but all the people in the markets are fund managers. Okay? So आप क्या कर रहे हो? जैसे I already generally give this example कि आप 10th का रिजल्ट देखिए, ओके, SSC रिजल्ट, जहाँ पे कुछ स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, कुछ स्टूडेंट पास हो जाते हैं, कुछ स्टूडेंट मेरिट में आ जाते हैं. नाउ टेक दैट क्लासरूम टू IIT क्लासरूम. क्या हो गया? The number one guy is say 98-99%. The number last guy in the classroom may be 94-93%. May not be 90% also. Why? Because intellectual capitals are coming together. Exactly same thing is happening, and as market evolves, same thing happened in US, Europe, and same thing is happening in India also. कि 30 साल पहले कितने म्यूचुअल फंड्स मैनेजर्स थे, कितने स्टॉक ब्रोकर्स थे, कितने एनालिस्ट थे, कितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर टू इन्वेस्ट. आज 40 से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, 1000 से ज़्यादा PMS AIFs हैं. All they are coming in the market. They're all intellectual people are making market very strong. So you are depending on a market wisdom. आप collective wisdom पे देख रहे हो, that's a passive style. Okay. So आपका ये आएगा कि मैं why should I choose a particular index? Because you are not depending on a particular style. You're depending on the collective wisdom of the market. That's called a passive investor. Wow. Okay, that was really insightful. So आपने पहले passive funds lead किए in Motilal Oswal Asset Management and now in Axis Mutual Fund. तो हमें बताइए कि इसमें challenges और rewards क्या होते हैं within this ambit of this sector. Right. Yeah. So out of my 23 years, 17 years I have spent on passive. Okay. I started my career change जब मैंने बेंचमार्क म्यूचुअल फंड ज्वाइन किया. शायद बहुत सारे न्यू जनरेशन को पता भी नहीं होगा बेंचमार्क म्यूचुअल फंड क्या है, पर मैं अगर कुछ नाम बताऊंगा तो आपको पता चलेगा. निफ्टी 20, गोल्ड 20 सुना है आपने? सुना. Which are ETFs. Right. Benchmark was pioneer of ETF and indexing in India. Okay. Currently it is with Nippon. Okay. So that's changed my completely perspective about passive. क्या होता है, ETF क्या होता है, क्यों करना चाहिए. Okay, and that's from that onward, 2007 onwards, I am completely passive. So my entire portfolio is passive. अच्छा. Okay. So those days ऐसा था कि ETF क्या है पता ही नहीं था लोगों को. आप बिलीव नहीं करोगे, हम बैग लेके जाके फोर्ट में हर ब्रोकर के पास एक जैसे आप ऑल दीज मार्केटिंग और MR जाते हैं कैसे, वैसे हम लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, वैसे ही हम लोग जाके हर ब्रोकर की देखो सर ये ETF होता है, ये कैश मार्केट में कर सकते हैं आप, ऐसे ट्रैक करता है, इसका NAV ऐसे होता है, सब कुछ हमने वी हैव डन विद यू नेम द ब्रोकर, हर किसी के साथ हमने सिखाया. Okay. So that is a very difficult market, but 2008 turned out to be a positive market for us because market crash हुआ, global financial crisis हुआ. Right. People were confused कि करना क्या है. Thankfully हमने जो 1-1.5 साल मेहनत की थी, people understood कि when you are confused just buy the market. Okay. And people then ETF got very popular कि वहाँ से फिर people started buying Nifty, gold, Nifty Next 50. वो एक challenge, वो एक period था. फिर आया पीरियड प्री कोविड. ओके. 2017-18 क्राइसिस हो गए, IL&FS के ऑल मिड एंड स्मॉल क्रैश लाइक एनीथिंग. एंड 2019 व्हेन आई जॉइंड मोतीलाल इट वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज 10 साल की रिटर्न्स इंडेक्स के सिंगल डिजिट में थे, 15 साल के रिटर्न सिंगल डिजिट में थे. तो देयर वाज नो कॉन्फिडेंस कि मार्केट में पैसा बनता भी है. इट इज नॉट अबाउट एक्टिव पैसिव, स्टॉक मार्केट में पैसा बनता भी है. ओके. एंड शायद कोविड हमारे लिए वो वरदान साबित हो गया कि कोविड आ गया एंड पीपल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द मार्केट. इंटरनेशनल मार्केट किक्ड इन, वी लॉन्च S&P 500, बिकेम द फर्स्ट फंड डिजिटली वेरी सक्सेसफुल. फिर NASDAQ था, दैट बिकेम वेरी सक्सेसफुल. एंड हमने क्या किया, देन वी वेंट ऑन लॉन्चिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन रेगुलर इंटरवल्स. In passive funds only. Achha. Probably I launched 27 funds in 4 years. Oh. Okay. Wow. The largest by any fund house in that period. So अलग-अलग flavors हमने launch किए. Okay. We got into asset allocation. We got into sector funds. We got into factors. Okay. बहुत challenges हुए हमको लोगों को बताने के लिए कि क्यों use करना है. People slowly realize. Okay.
इंटरनेशनल बिकेम वेरी पॉपुलर. देन डोमेस्टिक की बात थी, फैक्टर्स आए, हमको एक्चुअली समझाना पड़ता था कि ये फैक्टर्स हैं, दिस इज हाउ इट वर्क्स. एक एक चीज, मोमेंटम कहाँ यूज़ करना चाहिए, लो वॉल कहाँ यूज़ करना चाहिए. तो बहुत डीप डाइव करके हमने लोगों को स्प्रेड किया. क्या था कि 2007 में भी ETF नया था लोगों के लिए, राइट. 17-18 पोस्ट कोविड ऑल्सो फैक्टर्स वर अगेन न्यू, क्योंकि हिस्ट्री नहीं थी उसका, बैक टेस्टिंग ज़्यादा नहीं था उसका, ओनली बैक टेस्टिंग था, एक्चुअल हिस्ट्री नहीं थी. बट लास्ट 3 years now you see everybody is talking about factors. Right. People understood passive. So this has started more after COVID. Do you say After that? COVID. In fact, उसका first year था when EPFO and government divestment चालू हुआ 2013-14 में, when your CPSE ETF came up. Yeah, right. Okay, Bharat 22 bond came up. ETF, yeah. ETF came up, and when EPFO started, Provident Fund started investing in ETFs. Okay. They actually gave a huge big market for, and that's how the growth happened. So we were like less than 2%. 2014-15 में थे, आज we are more than 18-19% of the entire equity, entire पूरा ये market AUM. Okay. That's how we have seen growth of passive funds. So Vikash, as a leader in various roles, so tell us about what was your approach towards team building, and how did you maintain strong relationships within the distribution network of these large giants, Motilal Oswal and Axis Mutual Fund? पहले तो आपको आपके टीम को आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए, राइट. वो भरोसा कब आएगा, जब आप उनसे सिर्फ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, उनको कुछ दे भी रहे हो, राइट. व्हेन यू एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू देयर लाइफ इन टर्म्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, इन टर्म्स ऑफ करियर पाथ, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज. ओके, लास्ट सो मेनी ईयर्स आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट माय कलीग्स. आप जो आज सीख रहे हो ना पैसिव में, और 5 साल के बाद यू विल बिकम अ वैल्यूड पीपल इन द मार्केट, हु फ्यू पीपल नो कि मार्केट में क्या हो रहा है पैसिव, राइट. तो वो फेथ देना बहुत ज़रूरी है कि आपके लाइफ में आपका लाइफ कहाँ जा रही है. इट इज़ नॉट दैट ओनली सेल्स नंबर्स कि आपने ये क्वार्टर में क्या नंबर की, ये साल में क्या नंबर की, दिस इज़ योर टारगेट. इट्स नॉट ओनली दैट. आप वो फेथ जीतना बहुत ज़रूरी है, राइट. Like help them grow, करेक्ट. तभी तो वो आपके ऊपर फेथ रखेंगे, एंड देन वॉट एवर यू विल डू, दे विल एक्चुअली ट्रस्ट यू, एंड you get the end of the day result, right? Same thing happens with the relationship on the partners also. आज क्या हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन में people are confused because so much of data, so much of schemes, कहाँ से शुरू करें, मेरे लिए फ्यूचर है या नहीं है, राइट. तो आपको उनको ये बताना है कि आप ये बिजनेस में आने के बाद आपका 10 साल 20 साल के बाद फ्यूचर क्या हो सकता है. आज बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है ना, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, डिस्ट्रीब्यूटर्स आर नॉट एडवाइजर्स, राइट. बिकॉज आप उस तरह से नहीं सोच रहे हो, आप ये देख रहे हो कि मुझे कमीशन कैसे मिलेगा. तो वो कमीशन मिलने से आपका रोल चेंज करना, एडवाइजर, एंड आप उनको फ्यूचर दिखाना, एंड फिर उनके नॉलेज में जो बढ़ोतरी कर सकते हैं, जिस तरह से सपोज आपको उनको नए प्रोडक्ट देने हैं, ओके, उनको पोर्टफोलियो बिल्ड करके देना है, उनके लिए कुछ रिसर्च करके देना है, ओके. आजकल क्या लग रहा है डिस्ट्रीब्यूटर्स को कि ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मुझे कमीशन मिल रहा है. बट वो आप ट्रस्ट डेवलप कब कर सकते हो, जब आप वैल्यू ऐड करोगे उनके लाइफ में भी. एंड दैट्स हाउ इट्स बोथ वेज. फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, पीपल शुड लुक एट यू कि आप उनको कुछ रास्ता दिखा रहे हो, एंड दैट हैज हेल्प्ड मी फॉर द बोथ माय पार्टनर्स एज वेल एज माय टीम. सो विकास, टेल अस अबाउट द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ पैसिव फंड्स, इंक्लूडिंग योर इंडेक्स फंड्स एंड ETFs, in this rising investment landscape that we have today in India. करेक्ट. जैसे मैंने कहा कि आज 550 भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं. इक्विटी की बात कर रहा हूँ मैं, करेक्ट. आप डेट में जाओगे तो और ज़्यादा आपको ज़्यादा मिलेंगे. तो फॉर एनी इन्वेस्टर्स, आज हम बात कर रहे हैं कि 4 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में. लुक एट द एंटायर पॉपुलेशन, वी आर नॉट इवन 4%. आपको इसको कैसे, मगर आपको दिस इज एग्जाम्पल आई ऑलवेज गिव कि पान वाला और चाय वाला जब तक SIP नहीं कर रहा है, दिस इज जस्ट अ मुंबई सिटी का एग्जाम्पल, बट आप टायर 2 टायर 3 सिटी में आपके मेड्स हैं, वो अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं अब तक वो रीच नहीं पहुंचा है. वो रीच कब पहुंचेगा? व्हेन यू मेक इट सिंपल, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, ओके. एंड दैट्स वेयर आई फील दैट पैसिव कैन प्ले अ बिग रोल. आप मुझे चॉइस करना पड़ रहा है कि, और चॉइस करने के बाद जस्टिफाई भी करना पड़ रहा है कि ये मैंने क्यों दिया. Is on active I'm talking about. I'm not saying active is something which is bad, right? But simplicity में passives are very simple. Okay, you can as go at like Nifty 50 आप उठा लो.
राइट उसका रिटर्न देख लीजिए, इट्स गुड. 14-15% रिटर्न ओवर लास्ट 15-20 years इज गुड रिटर्न्स, राइट. तो सिंप्लिसिटी इज द की. दैट्स वेयर पैसिव विल प्ले अ बिग रोल. पैसिव कैन बी अ एंट्री पॉइंट फॉर एनी इन्वेस्टर्स. अगर आप इन्वेस्टर को मिल रहे हो, सपोज हमारी मुलाकात हो रही है, ओके, यू आर इन्वेस्टर, आई एम एडवाइजर, आई हैव टू टेल यू इफ आई एम एन एक्टिव मैनेजर, दिस इज माय स्टाइल, दिस इज हाउ आई लुक एट इट, ये करते हैं, वो करते हैं, ब्ला ब्ला चीज़, राइट. उससे अच्छा मेरे सर आप टेंशन मत लो, मौसमी जस्ट मार्केट खरीद लो. ओके, तो अपना कन्वर्सेशन जो है ना वो 10 मिनट की जगह 1 मिनट में खत्म हो गया. कि जस्ट बिगिन लुक एट इसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, बिकॉज निफ्टी हैज़ लाइक 25 years ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड. उससे भी लंबा 95 से है, राइट. तो वो आपका ट्रैक रिकॉर्ड आपको मिल गया. देन सबसे बड़ी कंपनीज आप खरीद रहे हो. फिर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे बड़ा पोर्टफोलियो चाहिए, तो 500 स्टॉक खरीद लो. निफ्टी 500 इंडेक्स है, लार्ज मिड स्मॉल सभी कुछ आ गया आपके पास. तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मुझे लार्ज में जाना है, मिड में जाना है, स्मॉल में जाना है, राइट. तो सिंप्लीफाइड अप्रोच इज द की फॉर अ पैसिव फंड्स. ओके, तो यहाँ पे एक स्कोप बहुत ज़्यादा है. ओके, इट्स अ मैटर ऑफ हाउ डू यू टेक दिस फॉरवर्ड, मेक अ रीच. और हमें ज़्यादा फायदा हुआ टेक्नोलॉजी का इसमें. True. क्योंकि वी हैव हेल्प एक्चुअली इट हेल्प्ड अस अ लॉट. कि आप जो इन्फॉर्मेशन आप फिंगर टिप्स पे दे सकते हो थ्रू मोबाइल और थ्रू सोशल मीडिया, आई थिंक दैट इज हेल्पिंग अस अ लॉट. एंड बिकॉज मोबाइल हैज रीच्ड each and every small person, city also. Okay, so that's how we see a strong growth going forward. So in passive funds also, a lot of people who don't understand stock market, so they can, for them it's an easier path. उनके लिए easy हो जाता है to invest in passive funds. Correct. अब आप मार्केट में आइए, okay, take an exposure, okay. जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ओके, आपको आपका रिस्क एपेटाइट बढ़ेगा. उस हिसाब से आप इक्विटी में, डायरेक्ट इक्विटी में जा सकते हो, आप एक्टिव म्यूचुअल फंड में जा सकते हो, आप सेक्टर म्यूचुअल फंड में जा सकते हो, राइट. सो दिस इज अ गुड एंट्री पॉइंट. आप आ जाओ, एक्सपीरियंस लो. ओके, सो दैट्स इट्स अ गुड बिगिनिंग. एंड दिस कैन ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ कोर. देयर इज समथिंग कॉल्ड कोर एंड सैटेलाइट अप्रोच, कि जहाँ ऐसा पोर्टफोलियो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए जो जिंदगी भर आपके पास रहे. एंड पैसिव कैन बी दैट. अच्छा, यू जस्ट बाय वन मार्केट, निफ्टी 500 बिकम्स अ कोर ऑफ योर पोर्टफोलियो. ओके, और फिर उसके बाद में आप सैटेलाइट कर सकते हो जहाँ पे आप एडिशनल रिस्क ले सकते हो. तो मेरे पास 100 रुपये है, मैं 40 से 50 रुपया फिर निफ्टी 500 में लगा दूंगा मैं. फिर बाकी 40-50 रुपये जो है, एज माई एपेटाइट ग्रोज फॉर रिस्क, फिर मैं कुछ पीएमएस में कर सकता हूँ, एआईएफ में कर सकता हूँ, ओके, या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स में जा सकता हूँ, एक्टिव म्यूचुअल फंड में जा सकता हूँ, ओके, थोड़े थीमेटिक में जा सकता हूँ. सो दैट्स अ कॉम्बिनेशन. हमें अभी भी हम क्या है, हम उसमें अटके हुए हैं कि एक्टिव अच्छा है कि पैसिव अच्छा है. काफ़ी लोग डरे भी हुए हैं. आई मीन दे थिंक दैट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट इज सो रिस्की कि इसमें पैसे लगाएंगे तो. सो आई थिंक दैट फियर ऑल्सो हैज़ टू गो अवे. बट वो इन्फॉर्मेशन से जाएगा, सिंप्लिसिटी से जाएगा, राइट. अगर आप चढ़ते मार्केट में ही पैसा लगाओगे तो वो नहीं जाएगा, बिकॉज जब मार्केट गिरता है तो लोग भाग जाते हैं मार्केट से. ट्रू. दैट्स हर्ड मेंटालिटी अप्रोच आई गेस. सो अभी जो हम बात कर रहे थे अबाउट टेक्नोलॉजी, सो उसमें डिजिटल सर्विसेज कैसे ट्रांसफॉर्म करिए दिस एंटायर इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री, उस पर थोड़ा सा अगर आप कुछ बोल सकते हैं तो. एक ज़माना था कि अगर मौसमी आपको SIP करनी है ना, तो मुझे आपके पास आना पड़ता था या आपको मेरे पास आना पड़ता था विद अ फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म. साइन लेना है, फिर आपको पैन कार्ड का कॉपी दो, एड्रेस प्रूफ दो, चेक दो, वेरियस डॉक्यूमेंट्स. दिस आई वाज टॉकिंग म्यूचुअल फंड्स, राइट. आज आप क्या हो गया, आपका KYC भी ऑनलाइन हो सकता है. आप ऑनलाइन चले जाइए, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड अपलोड कर दीजिए, ऑनलाइन KYC हो गया आपका, राइट. आपको इन्वेस्टमेंट करना है, 2 क्लिक पे या 3 क्लिक पे आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा. गो टू अ पर्टिकुलर साइट, सिलेक्ट स्कीम, आपके अमाउंट डालिए, बैंक अकाउंट में जाइए, अमाउंट ट्रांसफर कीजिए. तो इमेजिन कितना ट्रैवल टाइम बच गया, कितना बच गया, कितना टाइम एनर्जी है सेव्ड. उसका फायदा क्या होगा, इट्स नॉट अबाउट मी रीचिंग यू, आई रीचिंग टू अ पुणे, सातारा, स्मॉलर सिटीज, छत्तीसगढ़ में कोई छोटी सिटी में जाना है, पैन इंडिया. नॉट ओनली इन पैन इंडिया, मेरे क्लाइंट्स बैठे NRI, ओके, आउट ऑफ इंडिया, उनके लिए भी हो गया. तो आज जो एक एडवाइजर एक सिटी में काम कर रहा था या फिर एक लोकेलिटी में काम कर रहा था, आज यहाँ बॉम्बे में बैठे बैठे वो इंटरनेशनल क्लाइंट मैनेज कर सकता है. आज वो डोमेस्टिक क्लाइंट कहीं भी, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, कहीं भी मैनेज कर सकते हैं. वो एक फ़ायदा हो गया टेक्नोलॉजी का. दूसरी चीज़ क्या होगी कि आपको इन्फॉर्मेशन देनी है. ओके, तो आज इन्फॉर्मेशन आपके टिप ऑफ द फिंगर पे है. आप इंस्टा में देख सकते हो कि कोई म्यूचुअल फंड का कुछ फीडबैक लेना है आपको, ओके, आपका मैसेज आप इंस्टा के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू आप भेज सकते हो. अभी तो ऐप्स भी नोटिफिकेशंस भेजते हैं
if the market is closed on some holiday, तो वो भी मैसेज हमें आ जाता है. करेक्ट. न्यूज़ भी आजकल आपको मिलती है. सो वो जो टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो आपके पास शायद दूसरे दिन आती थी, वो आपके फ्यू मिनट्स आपके पास आ चुकी. तो टेक्नोलॉजी हैज प्लेड अ बिग रोल. It's all real convenience. They are real time और convenience भी ज़्यादा हो गया. That's how it is helping. So you also have a vast industry experience. So tell us how the Indian mutual fund industry has transformed over the years. आपने already हमें बताया है कैसे पहले 500 फंड मैनेजर्स सब लोग थे. तो अभी वो ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है and we can see that. But over the years, in few years only, we have seen this massive transformation and it's like a boom. So how do you feel about this? I mean, what is your take on this? अगर मुझे कोई 2001 में बताता कि मार्केट 24,000 जाने वाला है निफ्टी, तो मार्केट शायद 300 का था, 300 राइट. आज 24,000. इमेजिन जस्ट एन इंडेक्स, आई एम टॉकिंग निफ्टी 50. उसके नीचे वाले स्टॉक देखोगे तो और ज़्यादा बढ़े हुए हैं. तो हम कभी लगा ही नहीं था कि मार्केट इतना बढ़ सकता है. Right, and technology has played a big role in that. Transparency regulator, I am thankful to SEBI. What SEBI has done fantastic job. Okay, AMFI also has done fantastic job. Okay, in taking this information, mutual fund sahi hai campaign, and all these things have helped a lot. So everybody, all mutual fund, each and every advisor, okay, has played a big role. I saw those 23-24 years ago, people used to sell a lot of FDs. डिस्ट्रीब्यूटर ऑल्सो बैंक एफडीज बेचते थे, या फिर पोस्ट ऑफिस बेचते थे, या फिर कंपनी एफडीज बेचते थे. नाउ दिस पीपल हैव बिकम म्यूचुअल फंड एडवाइजर. आज वो म्यूचुअल फंड ही नहीं, आज वो पीएमएस भी बेच रहे हैं, आज वो एआईएफ भी बेच रहे हैं. राइट, लॉट ऑफ पीपल हैव बिकम लाइक अ सब ब्रोकर, लॉट ऑफ पीपल हैव बिकम लाइक अ मेन ब्रोकर. So that's the demand. That's the evolution has happened. Okay, on fintech platforms आ गए हैं आज. fintech platform जो brokers 30-35 साल लग गए जिनको 1,000 करोड़ का प्रॉफिट दिखाने के लिए, फिनटेक प्लेटफॉर्म शोइंग इन 5 years 6 years. That's the technology has played a role. तो इंडस्ट्री हैज इवॉल्व्ड अ लॉट. साथ ही साथ क्या हुआ है कि इन्वेस्टर्स भी ज़्यादा आ गए. जो पहले 1.25 करोड़ इन्वेस्टर्स इंडस्ट्री में थे एक्टिव, उसमें 40-50 लाख ही थे. आज वी हैव मोर देन 12 करोड़ डीमैट अकाउंट्स. क्योंकि जो पार्टिसिपेशन हैज इंक्रीज्ड, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन हैज इंक्रीज. जैसे मैंने कहा 40 म्यूचुअल फंड है, 40 इंश्योरेंस कंपनीज हैं, राइट, ब्रोकिंग कंपनीज हैं, इफ यू हैव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर इन्वेस्टिंग, बैंक ट्रेजरीज हैं, राइट, FIIs वर कमिंग इन इन्वेस्टिंग. तो उसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट का इंटेलिजेंस बढ़ गया है, मार्केट का पार्टिसिपेशन बढ़ गया है, मार्केट का डेप्थ बढ़ गया है. पहले ऐसे था कि निफ्टी 50 के बाद तो आपको दुनिया खत्म हो जाती थी, या सेंसेक्स. भाई सेंसेक्स वाज सो पॉपुलर बिकॉज उसके बाद लिक्विडिटी नहीं थी. आज आप 500 स्टॉक के नीचे जाओगे तो भी आपको लिक्विडिटी मिल जाती है. राइट. So that's the transformation which I have seen, okay, over last 23-24 years. And I mean, we know that artificial intelligence is now coming in the fintech industry. So अभी हमने बात की कि पास्ट में कैसा था. सो व्हाट डू यू सस्पेक्ट व्हाट विल बी द फ्यूचर विथ योर AI participation in the fintech industry? How do you think that is going to change? Yes, so that's a great change and very positive change. जैसे मुझे अगर सर्वे करना है, ओके, तो मुझे आई हैड टू अपॉइंट अ पर्टिकुलर एजेंसी, फिर इन्वेस्टर को भेजो कि व्हाट दे आर लुकिंग एट, एंड देन यू डू अ रिसर्च कि क्या लॉन्च करना है. With the help of AI, I can find out now. We recently did one research कि मुझे investors net पे क्या ढूंढते हैं. Okay, what are their questions? तो सबसे ज़्यादा सर्च किस वर्ड पे होता है, सबसे ज़्यादा सर्च कौन से क्वेश्चंस हैं. Okay, what are they expecting? उनका जर्नी क्या है. सपोज यू लुक फॉर म्यूचुअल फंड एज अ प्रोडक्ट, ओके, आपने सर्च किया, उसके बाद आप वहाँ क्या जर्नी करते हो. आप न्यूज़पेपर आर्टिकल पे जाते हो, आज कोई फिनटेक वेबसाइट पे आप जाते हो, कोई म्यूचुअल फंड वेबसाइट पे जाते हो, आप कहाँ जा रहे हो, एमफी पे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और आप नेक्स्ट क्या करते हो, ये सब कुछ डेटा जो है ना आज वो AI हमें देगा. तो यू एग्जैक्टली नो कि ऑल दिस पीपल हु हैव सो मच ऑफ, आज हाउ मेनी मोबाइल्स विल हैव, व्हाट, ऑलमोस्ट 96-97 करोड़ के आसपास होगा, राइट. तो उतने आज मोबाइल्स हमारे पास हैं, तो वो आज नेट पे क्या सर्च कर रहे हैं वो सब पता चलता है. सो यू कैन एक्चुअली understand their behavior and give them a solution. कि आपको फाइनेंस म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो you can design कि मुझे म्यूचुअल फंड में क्या बात करनी है.
Can I talk about a particular concept? Can I talk about a particular fund? Can I talk about some particular index? ये सब चीज़ें कर सकते हैं so that आप जो सर्च कर रहे हो उसका आंसर आपको बहुत जल्दी मिलता है. इफ यू रिमेंबर 10 साल पहले अगर आप नेट पे कुछ भी सर्च करते थे तो थोड़ा मिलना डिफिकल्ट होता था, आपको सेकंड थर्ड फोर्थ पेज पे भी जाना पड़ता था. आज जरूरत नहीं पड़ता है. क्यों नहीं पड़ रहा है? बिकॉज आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली ऑलरेडी पूछ रहे हैं. आप क्वेश्चन टाइप करते हो तो आपका क्वेश्चन ऑलरेडी वहाँ सर्च में आ जाता है. दिस इज व्हाट AI एंड डेटा हैज डन इट, इज प्लेड अ बिग रोल. सो बेनिफिट क्या हो रहा है? You know the psyche and behavior of your investors and you can actually reach out to them in short time. You give them answer कि आपको जो चाहिए उसका जवाब ये है. तो अभी जैसे हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे थे, then we spoke about AI. So how do you think wealth management is important for investors? Like how do they do that to begin with for people who've just entered the market? Okay, so first of all वेल्थ मैनेजमेंट थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाता है. ओके, वेल्थ मैनेजमेंट किसके लिए? जिसके पास वेल्थ है. ठीक है. एंड यू राइट, फर्स्ट टाइम हु इज कमिंग इन द इक्विटी मार्केट मे हैव वेल्थ बट उसने शायद इक्विटी मार्केट का एक्सपोजर नहीं लिया होगा. शायद उनके पास ट्रेडिशनली डिपॉजिट्स रहे होंगे, गवर्नमेंट, या फिर शायद डेट इन्वेस्टमेंट रहे होंगे, वो इक्विटी नेवर इन्वेस्टेड, ऐसे भी हो सकता है. राइट. सो दो टाइप के इन्वेस्ट, आई जस्ट स्प्लिट दिस इन टू. वन इज जिसको पता ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट क्या है. राइट. उनके लिए आप अलग कर सकते हो, जैसे सिंप्लिसिटी, जो मैंने पहले कहा कि जस्ट गिव देम सिंपल प्रोडक्ट्स, गेट यूज टू इट, देन जैसे उनका एपेटाइट बढ़ेगा आप उनको डिफिकल्ट प्रोडक्ट्स. वेल्थ मैनेजमेंट आप देखोगे जिस आपके पास वेल्थ है ऑलरेडी बट आपको शायद पता नहीं है मैनेज कैसे करनी है. तो वहाँ पे एस्पेक्ट आता है कि आप एसेट एलोकेशन देखिए, कौन से एसेट्स में जा रहे हो. ओके, आर यू हैव अ प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन. आप रिस्क कैसे मैनेज कर रहे हो? बिकॉज आपको सिर्फ आपका कैपिटल बढ़ाना नहीं, वेल्थ बढ़ानी नहीं है, आपको उसका प्रोटेक्शन भी करना है. ऑल दोज थिंग्स प्ले अ बिग रोल इन वेल्थ मैनेजमेंट. ओके, सो ओवरऑल रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आप कैसे पा सकते हो? व्हाट्स योर एम कि ये सपोज मेरे पास 100 करोड़ है, 100 करोड़ का मुझे 500 करोड़ करना है कि 100 करोड़ मुझे प्रोटेक्ट करना है. दैट्स हाउ द डेफिनेशन ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट विल चेंज. तो आपका रिस्क एपेटाइट, आज तो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिस्क. I can ask you 10 questions, आपका रिस्क प्रोफाइल पता चल जाएगा. ओके, एंड देन आई कैन ऑफर योर प्रोडक्ट कॉम्बिनेशंस. ओके, जो डेट इक्विटी म्यूचुअल फंड कमोडिटीज का कॉम्बिनेशन हो सकता है. ओके, सो वेल्थ मैनेजमेंट इट कैन बी सिंपल ऑल्सो, एंड एज आपका टिकट साइज बढ़ता है, एज आप शायद आपकी वेल्थ प्योर वेल्थ मैनेजमेंट, इट कैन गो एज कॉम्प्लिकेटेड एज लाइक गेटिंग इनटू लिस्टेड, अनलिस्टेड, प्राइवेट इक्विटी, ऐसे प्रोडक्ट्स भी आपको दे सकते हैं. ओके, सो कमिंग टू अभी जो ये वेल्थ मैनेजमेंट का टॉपिक मैंने टच किया है, दिस इज़ टू अंडरस्टैंड ऑल्सो द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र इन दिस वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री. सो अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट गेट इन टू द स्टॉक मार्केट and then they experience certain volatility and then they are like okay, this is very risky. So यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइज़र का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू टच अपॉन दैट टॉपिक, सो जस्ट अ फ्यू वर्ड्स ऑन दैट. यस, जैसे मैंने कहा कि आज इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूटर्स ज़्यादा हैं जिनको कमीशन में इंटरेस्ट है. बहुत कम लोग सोचते हैं कि एडवाइज़र क्यों बनना है, एडवाइज़र का रोल क्या है. राइट. सो एडवाइज़र इज़ लाइक ही नोज़ यू वेरी वेल, ही नोज़ योर बैकग्राउंड वेरी वेल. आप कैसे सोचते हो, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, आपका वेल्थ कहाँ से आ रहा है, आपका कैश फ्लो कहाँ से आ रहा है, आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है आगे जाके 5 साल 10 साल. दैट्स एक्चुअली रोल ऑफ एडवाइज़र. राइट. एंड फिर तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि पहले तो मुझे एडवाइज़र की तरह सोचना ज़रूरी है, मुझे कमीशन से बाहर निकालना ज़रूरी है. ओके, आज इंश्योरेंस अगर आप इंडस्ट्री में देखोगे, यू हैव मोर देन 30 lakhs म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स, सॉरी इंश्योरेंस एडवाइजर्स. राइट. म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स कितने हैं? एक रजिस्टर्ड है 1.5 lakh, एक्टिव आप देखोगे तो 50-55,000 ओनली. 55,000 कहाँ और वहाँ पे 30 लाख कहाँ? क्योंकि वहाँ पे कमीशन पे लोग ज़्यादा बेचते हैं. Okay. Insurance commissions are very high commissions. Mutual fund में commissions कम है, but it's actually a part of wealth management. आपको उनका एडवाइज़र बनना ज़रूरी है. कहीं ना कहीं लोगों को ये सोचना ज़रूरी है कि मैं कितने % पे काम कर रहा हूँ. ग्लोबल स्टैंडर्ड आप देखोगे, इफ़ यू आर मेकिंग 50 basis point, 50 पैसे का फीस आप साल का बना रहे हो, सपोज यूर एडवाइज़र, आपका 100 करोड़ का ईएम है, आप 50 लाख रुपए बना रहे हो, दैट्स अ वेरी गुड नंबर.
बिकॉज ये 50 लाख बढ़ सकता है और कंसिस्टेंट रह सकता है, बट अगर आप सोच रहे हो कि नहीं आई वांट टू मेक अ 3% फी, 4% फी, वो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी. ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कमीशन के पीछे जेन्युइन एडवाइजरी निकल जाती है. बट आई ऑल्सो बिलीव दैट आज इंडिया का जो मार्केट है वो डिस्ट्रीब्यूशन ड्रिवन मार्केट है. ओके. अगर आपको पान वाला और चाय वाले के पास से अगर SIP लानी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उस मेहनत का आपको मुआवजा मिलना चाहिए. तो यू शुड डेफिनेटली हैव अ माइंडसेट ऑफ कमर्शियल, बिकॉज आपका सर्वाइवल भी जरूरी है. आज अगर वो एडवाइजर सर्वाइव और डिस्ट्रीब्यूटर सर्वाइव नहीं होगा, एडवाइजर कैसे बनेगा, राइट? बट उनको ये फ्यूचर भी दिखाना जरूरी है कि आज आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, ओके, 5 साल के बाद आप ये सब चीजें करोगे, दिस इज हाउ यू विल स्टार्ट थिंकिंग लाइक एन एडवाइजर, राइट? तब आज शायद आप 10 करोड़ मैनेज कर रहे हो, आप 300 करोड़ 500 करोड़ कर सकते हो. आई हैव सीन, यू हैव सीन पीपल हु आर डूइंग इट. ओके, आप जेन्युइन एडवाइजर से ही आपका जो फेथ आपके ऊपर बढ़ता है, ओके, आपका मार्केट प्रेजेंस, आपके बारे में आपकी जो और जैसे आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ता है एंड पीपल कम टू यू, पीपल लुक अप टू यू. Okay, so advisor is a very very big responsibility, okay, in terms of ethics, in terms of the contribution in your clients portfolio, उनके life के goal achieve करना, it's a big role. but ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत कुछ इन्वेस्ट करना सभी को, मतलब इट्स नॉट दैट ओनली सेबी शुड डू इट, इट्स एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स हैं, एमफी है, हम सभी को साथ में काम करके वो डिस्ट्रीब्यूटर को एडवाइजर की तरफ लेके जाना है. ओके. अभी काफ़ी लोग, जैसे मैंने पहले भी पूछा कि काफ़ी लोग इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्टली into equities. So do you think that people individually should also approach a financial advisor and take advisory from them, because that is important for people to make returns, and it's a risky market, everybody knows that. So just on that कि importance क्या है financial advisory का आज, मतलब so that people take that approach and adopt it. Correct. ये बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा. जब आप बीमार पड़ते हो तो आप क्या करते हो? डॉक्टर के पास जाती हूँ. क्यों? बिकॉज आई नो डॉक्टर कैन ट्रीट मी. करेक्ट. तो आप अगर आपको लीगल एडवाइस चाहिए तो आप कहाँ जाते हो? लॉयर के पास जाते हो. ओके. अब उनको फीस भी देते हैं हम लोग, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि ये टॉपिक के बारे में मुझे पता नहीं है. ओके, एक्सपर्ट बैठा हुआ है एंड ही कैन डू अ बेटर जॉब, और उसकी फीस हम देते हैं. जब म्यूचुअल फंड या फाइनेंस मार्केट में आते हैं तो हमें लगता है कि हमें तो यार 2 न्यूज़पेपर पढ़ लिए, 4 यूट्यूब पॉडकास्ट देख लिए तो मेरा काम हो गया, बस आई नो एवरीथिंग, राइट? बिकॉज वेल्थ मैनेजमेंट, ओके, इज अ जर्नी. आपको एक एक्सपीरियंस देना है. आज 15 साल पहले आपका डेट मार्केट यूज्ड टू गिव 12%, 14% रिटर्न. आज वही रिटर्न आपका 7.5% पे आया है. ओके, तो आपके प्रोडक्ट्स भी चेंज होना ज़रूरी है. ये ट्रांसफॉर्मेशन कौन करेगा? आज हम बैठे हैं 2024 में, यू डोंट नो कि 2034 में क्या होगा, 2040 में क्या होगा. ये एडवाइजर का काम है कि कौन से प्रोडक्ट मेरे पोर्टफोलियो में ऐड करें, राइट, मेरा रिस्क असेसमेंट करें. एंड आज ये सबसे एक्चुअली दुखद बात है, मतलब आई एम रियली सैड टू दिस कि पीपल डोंट वांट टू पे फॉर एन एडवाइजर, राइट? बिकॉज जैसे मैंने कहा, एडवाइजरी इज ऑल्सो बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. एथिकली आप रिस्पॉन्सिबल होते हो. ओके, सेबी के रूल्स भी आपको पता है कि एज एन एडवाइजर सो मेनी थिंग्स यू हैव टू फॉलो. इट्स अ राइट ऑल्सो. ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है. एडवाइजरी के नाम पे आप डिस्ट्रीब्यूशन हो या नहीं हो, तो थोड़ा वहाँ कुछ चीज़ें कॉम्प्लेक्स भी है. बट अगर मुझे मैं अगर फाइनेंस में हूँ, ओके, फॉर एग्जाम्पल यू आर इन से मूवी, राइट, तो वो डायरेक्टर जो काम कर रहा है, प्रोड्यूसर काम कर रहा है, उसको वो काम करने बहुत अच्छे तरह से पता है, राइट. आई हैव टू कीप इन फेथ. वैसे मुझे अगर वो फाइनेंस एडवाइजर है तो इस इंडस्ट्री का मुझे पता नहीं है, आई कांट स्पेंड माई एंटायर टाइम, राइट? इफ आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इफ आई एम अ डॉक्टर, राइट, मैं पूरा स्टॉक मार्केट सीखना शुरू कर सकता हूँ क्या? ओके, 4 वीडियोस देख के मैं सीख सकता हूँ कि नहीं सीख सकता, राइट? तो कहीं ना कहीं एडवाइजर को इंपॉर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है. ओके, बट उसके लिए क्वालिटी एडवाइजर्स होना भी ज़रूरी है, राइट? सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट थ्रू योर प्लेटफॉर्म दैट एडवाइजर ज़रूरी है. एडवाइज़र आपके वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है. ओके, एंड उसके लिए वो फीस चार्ज करते हैं. वो इसलिए फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं कि उनको कमीशन बनाना है, बट दे एक्चुअली रियली प्ले अ बिग रोल इन योर लाइफ. सो विकास, टेल अस what are the practices that you take care of to stay
very like competitive in this field, like to stay updated and also motivate your team members in this field? Like what are the practices that you do personally? यस तो ये सवाल का जवाब आपको शायद मिलता होगा. मैं हर हफ्ता एक बुक पढ़ता हूँ. मैं रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ. आई वॉच टीवी. आई सर्च ऑन लॉट ऑफ इंटरनेट्स ऑल. मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता. For me, my teachers or mentors are my advisors. Okay. When you go and meet people, see when I go and meet people, wealth heads है या कोई distributor head है, कोई advisor है जो 25-30 साल मार्केट में, वो बहुत कुछ पढ़ रहा है ऑलरेडी मार्केट में. जब मैं आधे घंटे की कन्वर्सेशन मुझे पता चलता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है. I ask him right questions कि what is that you're looking at, sir? आप बताइए अभी नेक्स्ट क्या देख रहे हैं आप. अभी आप क्या कर रहे हो. आपके चैलेंजेस क्या हैं. What is that you're looking at? तब पता चलता है कि एडवाइजर्स क्या सोच रहे हैं, मार्केट में क्या चल रहा है. तो बेसिकली जैसे इन्वेस्टमेंट में मेरे लिए मार्केट इज द विजडम, राइट. सेम थिंग फॉर नॉलेज ऑल्सो. माई पार्टनर्स, माई कस्टमर्स आर माई दे ऐड टू माई विजडम. उनसे जान के बहुत सी क्या है टेक्निकल पढ़ के हो गया बहुत कुछ. राइट. अभी हमें मार्केट का इन्वेस्टर्स का बिहेवियर, एडवाइजर्स का बिहेवियर, वो बिजनेस किस तरह बना रहे हैं. तो लोगों के रिच एक्सपीरियंस से यू लर्न अ लॉट. सी एवरीबडी इज ट्राइंग टू बिल्ड देयर बिजनेस, राइट. तो वो लोग स्टडी कर रहे हैं, वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने आप में. उससे हमें पता चलता है कि हमें क्या नेक्स्ट करना चाहिए. सी ऑलवेज व्हील रीइन्वेंट करने की जरूरत नहीं है. मुझे इनोवेटिव होने के चक्कर में लोग बहुत बार बहुत सारी गलतियां कर देते हैं और देन दे रियलाइज इट. राइट. सो सिंप्लिसिटी. You believe the market for your investments. I believe market for my knowledge also. So Vikash, also tell us about the technologies and emerging trends that are appearing in the finance industry and that will significantly impact our present and our future. So keep it simple. See, technology playing a big role. फिर वो investment management में हो. Okay. जब आप स्टॉक्स बाय कर रहे हो एज अ फंड मैनेजर और स्टॉक सेल्स कर रहे हो, दैट्स वेयर टेक्नोलॉजी प्लेज अ बिग रोल. जो पहले चैलेंजेस हुआ करते थे, बड़ी बड़ी बास्केट्स यानी आपको से निफ्टी के 50 स्टॉक खरीदने हैं, निफ्टी 500 के 500 स्टॉक खरीदने हैं, तो वो चैलेंजेस हुआ करते थे, अभी है नहीं. सो टेक्नोलॉजी हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट. उसके वजह से क्या हो रहा है कि लिक्विडिटी बढ़ गई है, ज़्यादा लोग मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो टेक्नोलॉजी प्लेज अ बिग रोल. आपको स्टॉक्स के बारे में, कंपनीज के बारे में, ओके, टेक्नोलॉजी कैन गिव यू लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आपको शायद पूरा बैलेंस शीट पढ़ के आ सकती थी, लॉट ऑफ रिसर्च करके आ सकती थी, बट आज AI कैन रीड थ्रू योर इंटरनेट फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी, गिव यू ऑल द डेटा कि आज न्यूज़पेपर क्या कैप्चर कर रही हैं उस पर्टिकुलर ट्रेंड के बारे में, उस पर्टिकुलर कंपनीज के बारे में. सो लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन बी, आपको जो चाहिए वो आपको मिल सकता है बैठे बैठे. तो रिसर्च का आपका टाइम बहुत कम हो गया है. इन्वेस्टमेंट ट्रेंड की आप बात करेंगे तो आज लोगों को ये समझ में आ गया है कि कि मुझे कहीं ना कहीं मेरे पोर्टफोलियो को बैलेंस करना ज़रूरी है, कहीं ना कहीं कॉस्ट कम करना ज़रूरी है. ओके. और दैट्स वाई पैसिव इज गेटिंग ऑल्सो प्रेफर्ड. इंडेक्स फंड ETFs पॉपुलर हो रहे हैं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि एक्टिव नहीं करना है हमें. आज एक्टिव का जो डेफिनेशन है वो चेंज होने की ज़रूरत है. ओके. आप अगर बोल रहे हो मेरा पोर्टफोलियो लार्ज कैप का है, एक्टिव का, एंड इफ आई हैव 80-90 स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो, तो लार्ज कैप में वैसे भी 100 स्टॉक है. उसमें अगर आप 90 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना के रखो, यानी क्या किया आपने, ऑलरेडी मार्केट खरीद लिया है. राइट. मार्केट को आउट परफॉर्म कैसे करोगे आप? इफ यू आर सेइंग आई एम अ स्मॉल कैप एक्टिव फंड मैनेजर एंड इफ आई हैव अ 210-230 स्टॉक्स जिसमें 250 स्टॉक्स ऑलरेडी इंडेक्स में है, राइट, तो फिर आप कैसे वैल्यू ऐड कर रहे हो? राइट. तो एक्टिव का डेफिनेशन चेंज होना थोड़ा ज़रूरी है. एक्टिव में थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा है. ओके. और वो कॉस्ट क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं अल्फा जनरेशन के लिए एक्सपेक्टेशन है. और वो अल्फा आप जब तक ज़्यादा रिस्क पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करोगे, कॉन्सेंट्रेट पोर्टफोलियो नहीं बनाओगे, शायद वो नहीं होगा. तो पैसिव इज सिंपल, बट एक्टिव की डेफिनेशन चेंज होना ज़रूरी है. ग्लोबली एक्टिव एंड पैसिव ऑफ 50-50, 51% पैसिव, 49% एक्टिव. इन इंडिया अभी जैसे कहा 17-18% ही है. ओके. इट्स मेजरली, वो भी मेजरली गवर्नमेंट मैंडेट्स एंड EPFO का पैसा है. ओके. तो बहुत कम कंट्रीब्यूशन है पैसिव का. तो वो जो एक्टिव है वो एक्टिव इज नॉट इन म्यूचुअल फंड, दैट एक्टिव इज इन ऑल्टरनेट्स, हेज फंड्स में. अच्छा. अपने यहाँ
उतने ज़्यादा रिसर्च, ज़्यादा इनोवेशंस हो नहीं पाए हैं ऑल्टरनेट स्पेस में बिकॉज ऑफ द सेबीज कंस्ट्रेंट, और दैट वी अंडरस्टूड बिकॉज मार्केट अभी इतना तैयार नहीं हुआ है. कितने लोग 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं? Right, number of people I'm saying, people might invest 100 crore in one fund, that's a different story, 1%, but कितने लोग कर सकते हैं? तो वहाँ इनोवेशन होना ज़रूरी है, जिसे शायद और 4 से 5 साल लगेगा. बट यू ऑल्सो नीड टू आस्क राइट क्वेश्चन कि एम आई इन्वेस्टिंग इन द राइट एक्टिव फंड. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो स्टार्ट विद पैसिव फंड. बट दैट्स अ बिग ट्रेंड विच इज हैपनिंग. थीमेटिक कॉन्सेप्ट्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं. कंजम्पशन हो गए, हेल्थ केयर हो गए, या करेक्ट, एनर्जी इज अ सेक्टर, बट कंजम्पशन में क्या थीम ज़्यादा था. मैन्युफैक्चरिंग हो गए, तो यू कवर लॉट ऑफ 3-4 सेक्टर मिला के एक थीम हो जाता है. राइट, तो ये ऐसे थीमेटिक कॉन्सेप्ट्स बढ़ रहे हैं. वो थीम कैन टेक इंडिया टू नेक्स्ट लेवल. तो आप वो थीम में इन्वेस्ट कर रहे हो. ओके, वैसा तो यही चीज़ है कि थीमेटिक इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है. सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ सकता है. नए नए सेक्टर्स जो इंडस्ट्री में नहीं थे. न्यू सेक्टर्स के ऊपर मुझे पूछना था कि आपको क्या लगता है पिछले कुछ सालों में कितने न्यू सेक्टर्स इमर्ज हुए हैं इंडिया में, इन द इंडियन मार्केट्स? यस, तो पहले तो एक 8-10 सेक्टर्स थे जो पॉपुलर थे, बट अभी आप देयर इज अ न्यू इंडेक्स ऑन रियल एस्टेट, देयर इज न्यू इंडेक्स ऑन डिफेंस, राइट, कंजम्पशन है. ओके, हेल्थ केयर में आप इंडेक्स कर सकते हो. नॉट जनरल हेल्थ केयर में आप देखोगे तो वो टॉप हेवी हो जाता है. ओके, तो वहाँ पे 25 स्टॉक्स में आपको 10-12 नहीं, 5-6 स्टॉक तो 70-80% हो जाते हैं. बट हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट कैन गो एज हाई एज लाइक 100 स्टॉक्स. राइट, फ्रॉम मेडिकल डिवाइसेस, एग्जैक्टली, आपका लैब्स हो गए, सभी कुछ हो गए. सो लॉट ऑफ न्यू सेक्टर्स एंड थीम्स हैव एक्चुअली कम अप. ओके, और आगे भी आएंगे. रिसेंटली आई हर्ड NSE लॉन्च एन इंडेक्स ऑन द टूरिज्म. ओह, ओके. Okay, so all those business were related with tourism. Also, tourism are part of it. तो टूरिज्म में क्या क्या आ गया? होटल्स आ गया, होटल्स आ गए, करेक्ट, हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटलिटी ये आ गई आपके पास, टूर एविएशंस आ गए. ओके, सो ऑल दोस थिंग्स वर रिलेटेड टू दोस स्टॉक्स. सो दैट दोस थीम्स कैन बी लॉन्च. Okay. In fact, we also worked on a theme on women as an entrepreneur. Wow. So all those companies who have minimum 2 female directors, or as who's a CMD as a woman, and she's leading the role. ऐसे कंपनी का आप इंडेक्स बना सकते हो. That is so progressive. Yeah, that actually. is really good. And then you have EV, all those things also can come in. AI, blockchain आ ही सकता है, but अभी यूनिवर्स बहुत कम है. Okay, so you can do lot of things, but क्या हो रहा है कि आपको रिसर्च करना जरूरी है, जिसकी वजह से एक थोड़ा प्लेटफॉर्म बड़ा बन सकता है, लंबा बन सकता है. So coming to the favorite part of this podcast, personal questions. So how do you manage your finances? Okay, so very simple. 2007 I invested in the market, और 4 लाख रुपए थे मेरे पास. वो 4 लाख 1 लाख रुपए हो गए एक महीने में. Okay. And thankfully I was with Benchmark Mutual Fund that time. तब से लेके आज तक, इनफैक्ट 3 साल तक एक ही फंड था मेरे पास, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड. Okay. With that निफ्टी नेक्स्ट 50 I could buy my house, buy my car, get my marriage done. Oh my God. Okay. तो you can keep things simple also in your life. 2-3 साल पहले फैक्टर्स आए तो I added my factors in my portfolio. अच्छा. That's all. तो अभी 2 फैक्टर फंड है और एक निफ्टी नेक्स्ट 50 still continues my portfolio. So keep it simple. So other than equities, where do you invest? Like your yeah. So I also a strong believer of NPS. Okay. क्योंकि क्या हो रहा है कि म्यूचुअल फंड्स दो दे आर गिविंग गुड रिटर्न्स, बट प्रॉब्लम क्या है, लिक्विडिटी इज वेरी हाई देयर. ओके, तो अगर मेरे सामने कुछ बड़ी रिक्वायरमेंट आ जाती है, मैं अभी के भी उसको 1-2 दिन में रिडीम कर सकता हूँ, पैसा मेरे पास आ जा सकता है. लिक्विडिटी इज ऑल्सो कंसर्न, स्पेशली फॉर यू गाइज यंग जनरेशंस, बिकॉज यू आर नॉट कीपिंग एनीथिंग फॉर योर रिटायरमेंट. So NPS is another a big portion for me, EPF and NPS, because I know when I'll get retired, I need something which I can't touch. Right. So NPS is National Pension Scheme. Okay. वो एक an EPF Provident Fund which so that takes care of my debt plus kind of return. बाकी मेरा पूरा equity में. That's and real estate, alternate something. नहीं, nothing. Okay. Keep it simple. Okay. So this is very interesting question. What inspired you to choose this field? And if there are specific people who also kind of nudged you, helped you to grow in this field, so something on that. I wanted to do MBA post my graduation, but some incident happened. My father lost job that year, so I had to take up the responsibility. So it was like I was pushed to do a job.
I think I thank for that situation. Because of that I could come in mutual fund industry. Okay, so that is the major reason, I just came in, market ne acha perform kiya, then you like it, something which is new, right? And that's how I continued. So Okay. Can you share a significant challenge that came in your career and how did you overcome it? So सेल्स रोल ऐसे माना जाता है कि आप कुछ भी बेच सकते हो तो आप अच्छे सेल्स पर्सन हो. एंड दैट वाज मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट फॉर मी टू डाइजेस्ट. Okay. बिकॉज इनिशियल पीरियड में जो ज़्यादा सेल्स हुआ करते हैं 2001, 2, 3 एंड ऑल, जो मेजर सेल्स विच पीपल यू एनकाउंटर वाज क्रेडिट कार्ड सेल्स, bank CASA sales, bank account sales, and third was the BPL SIM card or mobile SIM cards. Okay, so these are very hard hitting, or FMCG sales. Okay. These were my friends and colleagues. So वो वहाँ पे क्या है, कुछ भी बोल के बेचना है. अच्छा. So that was impression in my mind, and when I came in sales, I said कि यार this is not something which I want to do. And then I realized कि नहीं, आप information दे के भी sales कर सकते हो. You can contribute in somebody's life, guide them to the better life, a better investment tool. Right? So that was a big change which helped me. कि मुझे लगा था कि शायद ये मुझे झूठ बोल के ही बेचना है, जो शायद ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, और सामने वालों को पुश करके ही बेचना है. I think वो it was very simple. Once I learned कि मैंने जो सीखा है सामने वालों को बता दूँ, people started investing. It was all simple. So it's basically you need to build that trust. And people will follow you contribute in people's life, in terms of knowledge, in terms of guide. I think that's how it helps. Okay. So in your day-to-day life, we know it's very hectic in Mumbai, and with the leadership that you have in the company, so what is your routine to unwind in a day? Okay, so I am a yoga trainer. Oh, okay, it's the last almost 12 years I am in yoga. Okay. And so every day 1 hour is minimum where I spent on in the morning. In the morning. Okay. So that changed my life drastically. Okay. Okay. तो उसके वजह से क्या होता है, you're always motivated. Okay. You know exactly what you're doing. Your thought process are very, very clear, and you don't get disturbed by other things on the day-to-day challenges. Okay. So would you advise also to like? Yes. Yes. So I'll definitely talk about yoga. आपको क्या करना है, first of all maintain your cleanliness, cleansing of your body. Okay. बहुत ज़रूरी है. Okay. योगा क्या करता है, वात पित्त कफ, which are three dosh in your body, they rebalance, जो आयुर्वेदा कहता है. अच्छा. Once they get rebalance, your body starts listening to you. आज क्या हो रहा है, बॉडी हमें ओवर रूल कर रही है. Right. हमें ज़्यादा सोना है, उठ के ही पहले कॉफ़ी पीनी है, your day doesn't start. Yeah. Right. And I avoid tea, coffee. I don't. You don't do it drink? at all. Okay. Okay. So what do you prefer? So I prefer a kadha. Oh. Okay, so green tea. Green tea. Okay. Yeah, it's actually keep it. In fact, my healthy drink is sugarcane and chas and coconut water. Oh wow. Okay. So that's how. So keep your diet simple. Keep your body cleansed. Okay, and then you focus on your just breathing. I think things can work out. Have some routine, get engaged. If you are stressed, go out for a walk. Don't listen to music. Okay. Just go out, walk, count your steps, Yeah. divert your mind, see people. Okay. I think your mind need a diversion. There is something called dharma, artha, kama and moksha. So the definition of kama, which is a चार पुरुषार्थ कहा जाते हैं, तो of our Indian philosophy. Okay. The definition of calm is entertain your mind. Desire which can engage your mind. Okay. It's not only calm, yani you have to get dwell into your desires. Okay. It's also entertain your mind, keep your mind engaged, do something. So what I'm doing is actually is calm for me. Okay. So I do my research, I do sales, and वो सब काम चल ही रहा है. But these things actually energize, because I'm not thinking about my work now. I'm thinking something different. Okay. So your music can be your calm. Okay. If you want to listen to music, or if you want to sing, okay, any of your passion, any of your hobby can be your calm, which can help you to retire from your routine life, gives you that rejuvenation, and you are again fresh to go back. Okay. What is your hobby? Tell us. So I yoga definitely. So I teach yoga to a institute which actually teaches for free. So every Sunday I spend there. Okay. I read a lot about our Vedantic philosophy.
Sankhya philosophy. Okay, so our Indian, or we have a 6 philosophies of India, okay, which षड दर्शन कहते हैं उनको. उनके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो you will see कि हमारे पास सब कुछ है. We have everything. What we have currently in our education system is just a knowledge. It's not a knowledge, it's information. Information, okay. Information को knowledge जब use करना कैसे सीखोगे तब knowledge होता है. And our philosophies tell us that. So I spend a lot of time there to learn and how can be implemented in our day-to-day life, routine life. Okay, so rapid fire questions. First question is, what is your favorite book on investing? So Common Sense of Mutual Fund Investing by Jack Bogle. Okay. What's your favorite quote that motivates you? Again by Jack Bogle, don't try to search a needle in the haystack, just buy the haystack. Just buy the market. Wow. Blockchain or AI, which will have a great impact in the future? Both of them will have. AI will read all the information which is there in the market or in the world, okay, and blockchain can give you complex calculation, okay. So both are very important. They can go hand in hand. Online course or in-person seminar? In-person seminar. Do you have a personal motto or mantra in your life? Share with us. Okay, so keep your life simple. Okay, you need to correct your mistakes, learn from your mistakes. The major challenge which I have seen, the previous generation have not learned from their mistakes, and that's why they keep on continuing the same mistake. Okay, so you yourself can become your own mentor. Investing or trading? Investing, of course. Best piece of career advice that you've received till date? So you are paid for your value in others' life. Okay, how do you contribute in people's life? That is the best advice. So don't look for only numbers, look for value addition in people's life. Foreign investment or Indian investment tools? Indian investment tool. Self-research or financial advisor? Financial advisor. Bearish or bullish on markets? So I leave it up to market. Okay. If market is bearish, I'm with the market. If market is bullish, I'm with the market, because I don't know to worry about. There are a lot of intellectual people who take care of it. So I go with the market, whether bullish or bearish. Thank you so much, Mr. Vikash, to coming here. And this was an honor to have you on the podcast. But before I let you go, there is one more question. This is my last question. So what is the advice that you would like to give to the younger generation who've just started with investing? Yeah. So first of all, fads. The young generations are taken away by fads. Okay, they want to always be trending. Okay, that's how they feel that's their success. It's actually not that. Okay, you have to keep things simple. Okay, value. You will be always recognized by what value you add in any organization, in your team, if you do a project, if you work for any company, right? That value addition is very, very important. And value addition doesn't end in 1 week, 1 month and 1 year. Right? Sometimes you have to keep on investing in yourself, okay, and when sometimes it takes a lot of time for unlocking value, right? Like value investing, it comes sometimes the gap of 10 years also. So don't get disheartened. So don't always think that only dopamine can make you work. Okay, you need to have a motivation. Okay, and for that motivation, you need to have a goal in your life, which can help you to have a good sleep in the night. Right? And that can be done when you add value in others. Okay, so whatever you learn, again, try to give back to society. Yeah. Okay, don't get distressed. Okay, don't get disheartened. If you have a right mindset, definitely you will reach at the right place. Thank you so much. Thank you so much. This was an insightful podcast for me. I've learned so much from you. And I hope our viewers have also learned a lot. So thank you for joining in. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.